بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین حضرات, کیسے ہیں آپ کے موڈ کیسے ہیں, آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ میں آپ کا ہوسٹ اور دوست ارشد بھٹی ہوں. آن ایئر ود ارشد بھٹی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھیں, ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جب ہم ملک سے باہر ہوتے ہیں تو ہمارے ملک سے جب لوگ آتے ہیں خوشی ہوتی ہے, اور جب کوئی سنگر آتا ہے, کوئی آرٹسٹ آتا ہے تو اور خوشی ہوتی ہے. یہاں بھی سب کچھ موجود ہے, یہاں بھی آپ اسپاٹیفائی پہ, یوٹیوب پہ سب کچھ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, لیکن جو مزہ لائیو دیکھنے میں ہے, سننے میں, اس کی ہزار سے بات ہے, کوئی اس کو کسی ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. کچھ نام ایسے ہیں جنہوں نے ایسا نام کمایا, جن میں سے ایک نام جنون گروپ کا ہے کہ ان کا ایک ایک گانا اتنا مشہور ہوا کہ اس نے ریکارڈ قائم کر دیے. پچھلے دنوں جنون نے یہاں آنا تھا, فار سم ریزن آپ کے علم میں ہے کہ پاک انڈیا جو معاملات تھے اس کی وجہ سے وہ نہیں آ پائے, تو اب اس کو ری شیڈول کیا ہے. تو جنون ان جون جو ہے اب آپ کے لیے ایک شاندار پروگرام ہونے والا ہے, اور یہ جون 22 کو ہو رہا ہے, دی تھیٹر ایٹ گریٹ کینیڈین. یہ اٹوبکو میں بہت نیا خوبصورت جو ہے ایک تھیٹر بنا ہے وہاں پہ, اور اسے موشیخ صاحب اور شیراز حسین صاحب آپ کے لے کر آئے ہیں ان ایسوسیشن ود ری لنک لا اینڈ وطن کباب. اور کیا کچھ اب ہوا, پچھلا کیا معاملہ رہا, اب کیسے رہا, دونوں دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں. خوش آمدید کہیں گے موشیخ صاحب اور شیراز صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک وقت مشکل تھا, ایک پوری پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے, ہر چیز تیار ہوتی ہے, اچانک پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ ہو گیا. گو کہ سلمان صاحب تو یہاں آ گئے, لیکن شو جو ہے وہ ری اسکیجول آپ کو کرنا پڑا. تو اب جو شو ہو رہا ہے یہ تو کنفرم ہے 22 جون کو, جنون ان جون فار شور ہے انشاءاللہ. جنون ان جون انشاءاللہ 22 جون کو ہو رہا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا اب فل بینڈ ہے, فل بینڈ آ رہا ہے بھٹی صاحب. ٹھیک آپ کو پتہ ہے دو کروز اکٹھے ہو رہے ہیں, مطلب کہ ایک کرو ہمارا آ رہا ہے علی عظمت اور ان کے جو میوزیشنز ہیں پاکستان سے, اوکے 5-6 میوزیشین, ٹوٹل 7 بندوں کا کرو پاکستان سے آ رہا ہے. اوکے اور جو دوسرا کرو ہے سلمان بھائی کا, سلمان احمد, برائن اوکانل, وہ ہیں بیسڈ نیو یارک کے اندر, تو وہ نیو یارک سے آ رہا ہے. دیٹ کرو از کمنگ فرام نیو یارک. ٹھیک ہے, مطلب دونوں آ جائیں گے. جی. اچھا شیراز صاحب, ٹکٹس لوگوں نے پہلے بھی لی تھی, تو اب کیا ہے, وہ ٹکٹ ابھی بھی وہی یوز ہوں گی یا نئی لینی پڑیں گی لوگوں کو؟ بالکل, بڑا اچھا سوال کیا. اکثر لوگ نا مجھے کال کر کے پوچھتے ہیں کہ یار ہم ٹکٹ کو کینسل کریں اور دوبارہ بائی کریں. بالکل ایسا نہیں ہے, ٹکٹ آپ لوگ وہی یوز کر سکتے ہیں, ٹکٹ کینسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, سیم والی 22 کو یوز ہوگی, اور ٹکٹوں کا وہ $25 سے جو ہم نے شروع کی تھی, تو اس کے بارے میں آج آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیا ایکسٹرا لے کے آئے ہیں ان کے لیے, کیا کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل. اچھا, اب بہت سے لوگ جب آتے ہیں تو لوگ ان سے ملنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں. تھیٹر میں تو بہت مشکل ہے کہ آپ ان سے اس طرح سے نہیں مل پاتے, تو میٹ اینڈ گریٹ بھی کو پلان کر رہے ہیں آپ؟ بٹ جب وی ہیو دا میٹ اینڈ گریٹ ان ورکس, ابھی ہم پلاننگ کر رہے ہیں اس کی انشاءاللہ. صحیح. میٹ اینڈ گریٹ یا تو شو کے ایک دن بعد ہوگا, اوکے, یا پھر شو کے ایک دن پہلے ہوگا. ٹھیک ہے. شو کی پوسٹ پون ہونے کی وجہ میں تھوڑی سی اگر جی بہت ضروری ہے, ظاہر ہے تھوڑا سا میں نے ذکر کیا. یہ شو ہمارا ہونا تھا مئی 11 کو شو تھا, یہ ڈیٹ ہماری مئی 11 کی تھی. ہم لوگ شو کو لے کے چل رہے تھے انٹل مئی 7. ٹھیک ہے. مئی 7 کو علی بھائی کی ان کے کرو کی فلائٹ تھی لاہور سے دبئی, اور دبئی سے ٹورانٹو آ رہے تھے وہ لوگ. 7 تاریخ کی بات میں کر رہا ہوں آپ کو, 7 مئی کی. تو یہ لوگ پہنچے ایئرپورٹ پہ. جب یہ ایئرپورٹ پہنچے تقریباً 1 o'clock in the morning کا ٹائم تھا, اور 3:10 پہ ان کی فلائٹ تھی لاہور سے دبئی اور دبئی سے ٹورانٹو. تو 1 بجے انفارچونیٹلی پاکستان واز اٹیک بائی انڈیا, تو رائٹ اوے آل دا فلائٹس گاٹ کینسل, اینڈ اس کے بعد جو ایئر اسپیس تھی وہ بھی ساری بلاک کر دی تھی پاکستان نے. تو کوئی فلائٹیں نہیں ٹیک آف کر رہی تھی, کوئی فلائٹیں لینڈ نہیں کر رہی تھی. سو اور پلس اس وقت 7 مئی کو جب یہ اٹیک ہوا, سچویشن بہت آپ کو پتہ ہی ہے ماشاء اللہ, آپ بھی انوالو اس کے اندر. تو اٹ واز ویری ڈفرینٹ سچویشن کہ وی آر انڈر اٹیک, پاکستان ہیز اے وار. تو اس وجہ سے ہم نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیا, دوستوں سے ڈسکس کیا, اسپانسر سے ڈسکس کیا, تو ہم نے یہی ڈیسائڈ کیا کہ یہ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم, وی نیڈ ٹو پوسٹ پون دا شو. لکیلی میں نے بھی 20 سال سے شو کر رہا ہوں, آپ کو بھی پتہ ہے. میں نے آج تک یہ دیکھا نہیں ہے کہ ہم نے 4 گھنٹے کے اندر, جب ہمیں پتہ چلا کہ ان کی فلائٹ مس ہو گئی اور ہمیں شو کو پوسٹ پون کرنا ہے, وی ہیو نو چوائس,
तो वेन्यू कैसीनो थिएटर माशाल्लाह इट्स अ ब्यूटीफुल वेन्यू, बहुत अच्छा है। ब्रांड न्यू वेन्यू, 2 साल पहले ये वेन्यू बना है एंड इट्स अ थिएटर स्टाइल वेन्यू। तो वेन्यू हेल्प अस अ लॉट, क्योंकि आपको पता है समर का टाइम है ये, और समर में वेन्यूज़ को रिक्वायर करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन वहाँ पे जो उनकी मैनेजमेंट है उनको इन्फॉर्मेशन पहुंची तो उन्होंने कहा कि डोंट वरी, विल डू व्हाट वी कैन। तो उन्होंने हमें 4 घंटे के अंदर पूरे का पूरा लॉजिस्टिक थी वो चेंज की और उसको रीअरेंज किया, और हमें उन्होंने जून 22 की डेट हमें उन्होंने दे दी कि दे जो और वो इत्तेफाक से अवेलेबल है तो मिल गई, अदरवाइज एक्चुअली अवेलेबल नहीं थी, उसके ऊपर भी 3 होल्ड थे किसी और के, ओके, बट वो डेट वो किसी ने कंफर्म नहीं की हुई थी। तो वो सो आपको उन्होंने advantage तीनों मिल होल्ड गया लगा के उन्होंने कहा दिस इज योर शो, यू गो सही, अहेड। ठीक। सो इस वजह से वो शो पोस्टपोन हुआ, और उसके बाद हमारी 10 मई को हमारी मीट एंड ग्रीट हमने प्लान किया हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल, और जो हमारा क्रू यूएस से आ रहा था, वो तो आगे सलमान भाई ने कहा कि भाई शो तो आपका पोस्टपोन हो रहा है, लेकिन वो लव टू कम एंड सपोर्ट द कम्युनिटी। और उस वक्त हालात भी ऐसे थे कि वार हो रही थी, तो दे वांटेड टू कम एंड cheer up Pakistani community in Toronto. सही। तो we carried on with that meet and greet on the 10th, जिसमें आप भी शामिल हुए बिल्कुल, थे, सलमान साहब आए थे, काफी लोग थे और उन्होंने बड़ा अच्छा थोड़ा सा हल्का सा परफॉर्म भी किया ताकि लोगों को चेयर अप। So that was the background के why the show was postponed from May 11th day to June 22nd. वही रहे। अच्छा जनाब, एक चीज़ मैं आपको भाई अभी मैं वेन्यू के हवाले से शिराज साहब से पूछूंगा। मोशेक साहब बहुत पुराने जो है शो जो हैं वो अरेंज करते आए हैं, हम टोबैको मोटर से को जानते हैं, इन्हें डीलरशिप है इनकी। शिराज साहब मॉर्टगेज से जो है रियल एस्टेट मॉर्टगेज से उनका ताल्लुक है, नहीं इज़ ऑल्सो। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग कहते हैं कि आपका बिजनेस है और आप शोबिज़ में हैं, तो ये कम्युनिटी की एक किस्म की खिदमत, हर बंदा तो ये काम कर नहीं सकता, और बहुत लोगों के ख्याल में पता नहीं बड़ा प्रॉफिटेबल काम है। तो जो प्रोमोटर होते हैं उनको पता होता है कि कितना ही प्रॉफिटेबल काम है, क्योंकि बहुत डॉलर्स लगते हैं, लॉजिस्टिक होता है, होटल्स में रहते हैं, 20-25 का पूरा क्रू आ रहा होता है, और उसके साथ फिर टिकट अभी इन्होंने सिर्फ $25 से वो स्टार्ट की है, तो इस पर भी आगे बात करेंगे। शिराज साहब, वेन्यू जो है ये भी एक सिलेक्ट करना बड़ा, एक आपका वेन्यू इससे पहले सजाद अली का जो प्रोग्राम था ये उससे बिल्कुल डिफरेंट वेन्यू है, तो ये भी और इतना आसान नहीं है और इतना सस्ता भी नहीं होता इतना बड़ा वेन्यू, तो ये आपने सोचा जब आप कर रहे थे शो के वेन्यू को सिलेक्ट कैसे करना? बिल्कुल, ये वेन्यू पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये मोबाई इज़ द फर्स्ट वन पाकिस्तानी कम्युनिटी में जिन्होंने ये वेन्यू रजिस्टर्ड हुआ। इट्स नॉट ईजी कि आप वॉक इन करो और आप उनके साथ बुक कर दो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मोबाई पहले पाकिस्तान में ऐसे हुए हैं जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके वो वेन्यू मिलता है, दे गो थ्रू ऑल द इंफॉर्मेशन, आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं, ऐसा नहीं कि वॉक इन किया मिल गया। तो वेन्यू इज अ ब्यूटीफुल वेन्यू, बहुत प्यारा ब्रांड न्यू है। राहत फतलिहा का शो हुआ था वहाँ पे, तो मोबाई ने मुझसे बात की कि यार जुनून, हम पहले हमारा CA सेंटर में था, तो कहते हैं यार ये नया वेन्यू है यहाँ पे करते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, तो मोबाई से बात की और वो हमने वो बुक कराया। इसके बड़ा खूबसूरत, इसकी खूबसूरती ये है कि चलें फर्ज कर लीजिए फ्रंट की सीट्स हैं रो, बिल्कुल, उसके बाद जो पीछे की रो है इवन अगर वो सस्ती भी है लेकिन उनका व्यू पहले वाले से भी ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल वो बिल्कुल ऐसे ऊपर जा रहा है, सब ब्यूटीफुल थिएटर है, सब ब्यूटीफुल। अच्छा सर, टिकट की क्या सूरत हाल है, क्योंकि अभी आपको पता है कि किस किस्म की सिचुएशन है, और हम कहते हैं कनाडा रिसेशन में जा रहा है, लेकिन बहरहाल ये भी बड़ा ज़रूरी है, और ये तो इनके कुछ सॉन्ग्स तो इतने पेट्रियोटिक सॉन्ग्स हैं और हर बंदा सुनना चाहता है, तो टिकट की प्राइस 25 वाली तो बल्कि ख़त्म हो जाती है, तो क्या उसकी सूरत हाल है, पॉसिबिलिटी अवेलेबिलिटी है भी उसकी? देखिए भट्टी साहब, ये शो जो है ना, ये मेरा शो नहीं है, शिराज का शो नहीं है, ये हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी का शो है। सही। और जैसे आपने बोला माशाल्लाह कि वी आर बिजनेस वाइज वी आर डूइंग ओके, दिस समथिंग वी डू अपनी कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए, राइट। तो जिस वक्त जिस तरह के हालात यहाँ पे चल रहे हैं इस वक्त, मार्केट थोड़ी स्लो है, इकॉनमी थोड़ी सी स्लो है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार टिकट प्राइस इतनी सस्ती कर दो कि हर कोई बंदा आके एंजॉय करे। एक और मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगा भट्टी साहब कि ये शो जो अब हो रहा है जून 22 को, दिस इज नॉट द शो, है तो शो ये जुनून का, लेकिन दिस इज गोना बी अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ शो इन अ वे कि inshallah we're going to celebrate Pakistan community in Toronto, especially the war we had with India. We won the war and we want to celebrate, we all want to all come together and show the unity that Pakistani community in Toronto is very well united with each other.
we have a respect for each other, and when we need to be together, we're going to be together. तो $25 में ये टिकट हम बेच रहे हैं इसको। ओके, हमने शुरू में 500 टिकट रिलीज की, वो फटाफट बिक गई। उसके बाद हम आस्ता आस्ता और रिलीज कर रहे हैं, सो एवरीबॉडी कैन कम डू द शो, एंजॉय द शो। सही। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा इस वेन्यू के बारे में, आपको आपने जो पूछा था क्वेश्चन पहले भी किया था, कि ये वेन्यू एक्चुअली इज बिल्ड फॉर थिएटर्स, Theatres, आई मीन कॉन्सर्ट्स। या इट्स अ थिएटर स्टाइल वेन्यू, इज बिल्ड फॉर थिएटर, आई मीन कॉन्सर्ट्स। और जितने भी शो थिएटर में होते हैं, आपने देखा था सिजाद भाई का शो, डिफरेंट थिएटर बट स्मॉलर लेवल, राइट? या उसका साउंड सिस्टम, उसकी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन इट्स अ डिफरेंट लेवल। सही है। जब सीएस सेंटर में शो होते हैं या होते थे, अब तो कोई भी नहीं कर रहा, कम वहाँ पे- होते हैं, जी हाँ। वहाँ पे प्रोडक्शन हाउस बनाना पड़ता हाँ, है, पूरा बट दिस इज ऑलरेडी built बिल्ड, है। और एवरी सीट जो है इस कुशन सीट एंड कंफर्टेबल सीट, ये नहीं कि चेयर लेके वहाँ पे फ्लोर पे पड़ी सही है। एंड द बिगर स्क्रीन्स, वेरी इट्स एन बिग स्क्रीन। एक्सपीरियंस टू एंजॉय द शो सही। इन दैट थिएटर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको सही। कि आप आए, एंजॉय तो अब करें। $25 की टिकट अवेलेबल हैं? जी बिल्कुल अवेलेबल है, हैं available। बिल्कुल है। अच्छा, शराज साहब, अब एक तो $25 की टिकट होगी, जो लोग ज़ाहिर है उसके अवेलेबल। अब बहुत से लोग हैं फैमिलीज जाती हैं, बिल्कुल। अब वो इकट्ठे बैठना चाहते हैं। अब ticketmaster.ca पे तो अवेलेबिलिटी है नहीं है, वो भी है, कुछ VIP टिकट्स भी होती हैं, तो वो भी अगर वो टिकट मास्टर से जो नहीं मिलती तो आपसे रब्ता करके कर सकते हैं? बिल्कुल, हमसे इसने रब्ता- ग्रुप में लेनी है किसी ने? बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। जैसे लास्ट वीक की मुझे कॉल आई कि हमने इकट्ठे बैठना है, 7 बंदों ने एक रूम में ऐसे इकट्ठे बैठना है, तो उनको मिलनी थी रही क्योंकि मिडल वाली बिक चुकी थी। तो बिल्कुल हम उनको जो इकट्ठी चाहिए उनको Compensate कर हम देंगे। वो करा के दे सकते तो वो हैं कि आपके फैमिली नंबर- इकट्ठी बैठ के एंजॉय कर सके तो show। नंबर पे रब्ता कर लें। बिल्कुल बिल्कुल जरूर कॉल करें। VIP अगर चाहिए, VVIP टिकट चाहिए आपको, अभी भी अगर आप स्पॉन्सरशिप करना चाहते हैं, सो वी आर ओपन एनी टाइम दे कैन कॉल। नाज़रीन किराम, आप पोस्टर जो है वो इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इस पोस्टर में नंबर दोनों के मौजूद हैं। मोशिक साहब का नंबर है 416-818-1184 और शिराज साहब का नंबर 647-271-4147। तो आप कोई भी इंक्वायरी इस हवाले से हो तो आप इनसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा ticketmaster.ca पे तो अवेलेबल हैं टिकट्स, जो है वो उस पे जाके आप जो है वो टिकट ले। जैसे अभी आपने बताया कि थोड़ा चेंज आएगा, तो उनसे डिस्कस होती, जैसे आपने बताया कि पेट्रियाटिज्म भी है इसमें, और ज़ाहिर अब जो सूरत है उस हवाले से तो नई चीज़ें भी पेश कर रहे हैं वो इस दफ़ा इस कॉन्सर्ट में? बिल्कुल। आप जब सलमान भाई थे उस दिन जी, उन्होंने देखा। ब्रीफिंग में, जी, जी। आपने भी क्वेश्चन यही किया था, question आपने जी, भी जी। किया था, आपने जी। उनको क्वेश्चन किया था, तो उन्होंने जी, भी जी। यही कहा था कि भाई यस दे आर प्रिपेयरिंग एक्चुअली दिस शो जो है ना, इसकी प्रिपरेशन जो चल रही है इस वक्त, is a more focus towards patriotism and to basically to celebrate the Pakistan and celebrate the little war we had, right? एक और चीज़ बड़ी साहब मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर आपकी कंपनीज हैं, अगर आपके पास 20, 30, 40 लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग उनके लिए ग्रुप टिकट्स का भी अरेंज कर सकते हैं। टिकट मास्टर पे तो टिकटें बिक रही हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। टिकट मास्टर पे ये होता है कि आपको ग्रुप टिकटें जो लेनी होती हैं वो थोड़ा टफ हो जाता है उसके लिए, राइट? तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप समझते हैं कि 40 या 50 टिकटें आपको बल्क में चाहिए, तो आप मुझे कॉल करें 416-818-1184 पे, और आप शिराज को कॉल करें 647-271-4147। मतलब मिनिमम अमाउंट नीड्स टू बी 40+। ठीक है, Yeah. सही, अगर हो तो वी कैन वर्क विद यू और ग्रुप, आपको अरेंज कर देंगे। अब ग्रुप या वो करने अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अब देखें हर शख्स जो है वो देखना चाहता है। अच्छा, कुछ लोग की अफोर्डेबिलिटी नहीं है, मतलब सीनियर्स हैं या कुछ है, तो मैं चाहूँगा उनको भी किस तरह से कंपनसेट ज़रूर करें, वो क्या तरीका? शिराज साहब। सीनियर्स के लिए हमने जो फर्स्ट मीट एंड ग्रीट आई मीन मीडिया ब्रीफिंग की थी, सही। तो उस पे हमने और मो भाई ने यही फाइनल किया था कि जो हमारे सीनियर है ना, वो हमें आईडी दिखाएं, उनके लिए हमने फ्री में टिकट रखी। अच्छा, ज़बरदस्त। हाँ जी, Very तो बिल्कुल जो 65+ 65+ जी, अभी तक तो यही चल रहा है। तो 65+ वो आईडी दिखाएं, उनके पेरेंट्स हैं ज़रूर आएँ। Good. और अगेन जैसे मोबाइल ने कहा, ये हमारा अपना शो है, हम सबका शो है, पाकिस्तानी दिन मना रहे हैं, सब आए इंजॉय करें। अगर किसी को किसी भी तरह का इश्यू है, नहीं कर सकते, वो भी हमें रब्ता करें। सही। अच्छा, एक और सवाल है, ये मतलब इस मौके बनता नहीं है लेकिन मेरे जहन में है, जब मैंने इसका जिक्र भी किया था, लोगों को ख्याल है कि बड़ा प्रॉफिटेबल ये जो है वो काम है, और बड़ा, मैं चाहूँगा थोड़ा सा ये भी लोगों को बताएं कि इस पर कितनी इन्वेस्टमेंट कह लीजिए या वक्त कितना है। मतलब आप, मेरा ख्याल है 3-4 महीने तो मतलब ज़रा प्लान करना है, उनके साथ बात करना है, वीज़े लगने हैं, टिकटें होनी हैं, होटल का काम है,
آپ اس کا میڈیا بریفنگز ہیں, پروموشن ہے, تو یہ کتنا آسان کام ہے کوئی؟ آپ نے دیکھ ہی لیا, بہت آسان کام ہے, دیکھ رہا ہوں. ہر کوئی کر سکتا ہے اس کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی زمانے میں شو بزنس واز پروفٹیبل. آج سے کم از کم نہیں تو 6-7 سال پہلے شو بزنس میں پروفٹ تھا, بہت اچھا پروفٹ تھا. لیکن پچھلے 6-7 سال سے the profit has disappeared. There is no profit. اس کی 2 وجہ ہیں. پہلی وجہ تو اس کی یہ ہے کہ آرٹسٹ کی جو کاسٹ ہوتی تھی یا فیس ہوتی تھی, used to be a lot lower than what we have to pay to the artist for their fees, right? جو ابھی ہم پے کرتے ہیں ان کو. اور تیسری بات یہ ہے کہ ٹکٹ پرائز جو تھی, جو آج سے 10 سال پہلے تھی, وہ بھی پرائز ابھی تک وہ وہاں کی وہاں ہی ہے. ہر چیز اوپر جا چکی ہے. وینیو کی کاسٹ از اپ, یور پروڈکشن کاسٹ از اپ, یور مارکیٹنگ کاسٹ از اپ. تو دیکھیں شو کرانا نتھنگ از امپاسبل ان لائف, لیکن ایوریج کمرشل شو دا وے وی ڈو اٹ, وی اسپینڈ اباؤٹ $300,000 to $400,000 آن ایوریج شو, سم ہائر سم لوور. تو 3-4.5 لاکھ کی کاسٹ ہوتی ہے شو کی. بے تحاشا کام ہوتا ہے اس کے اندر. لکیلی ماشاء اللہ شراز بینگ ود می, and we have a team of people, mashallah, we built a lot of members of the team we have. They are giving us a lot of support, including all the media, especially آپ بہت سپورٹ کر رہے ہیں آپ. So at this stage ہمیں جو ہے نا وہ سپورٹ کی ضرورت ہے in a way کہ we need to get the word out کہ let's get together and let's celebrate Pakistan on June 22nd. ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا بھٹی صاحب آپ کو, کہ اگر آپ لوگوں نے ٹکٹیں لے لی ہیں, and if you have parents in the house, the senior parents like 65 plus, آپ ہمیں بتائیں, please bring your parents with you. Those tickets for the seniors are complimentary from myself and Shiraz to them to support the seniors. This is a good gesture from both of you. MashaAllah, that's good. Shaheen, almost we done everything. اور اگر آپ مینشن کرنا چاہیں اپنے اسپانسرس کو, دیٹس ویری امپورٹنٹ. ان کے بغیر بھی جو ہے نہیں چلتا, تو آپ پلیز ان کو بھی اسپانسر کو بھی مینشن کر دیں کہ ان کا بھی. بالکل, جیسے مو بھائی نے بتایا کہ یہ شو جو ہے نا ہم دو نہیں کرتے, یہ ایک ٹیم ہے. جیسے ہمارے اسپانسرشپ ہے, ہمارا BD ہے, ہمارے جو ٹیم ہے ہماری, ان کے ساتھ یہ چلتا ہے. تو اسپانسرشپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے میں کرنا چاہوں گا ریلنگ کا, کیسر رضوی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوئے ہیں, کبھی کوئی کوشچن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یار آپ کا شو ہے, وی آر ود یو. وطن بھائی آنے سے پہلے آج ان سے بھی ملاقات ہوئی ہماری, وطن کباب ولی بھائی سے, تو ہی از امیزنگ, وہ بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے, تھینک یو ان کا بھی. ساتھ میں عمیر فرام بگ ایٹوبیکو انشورنس کمپنی سے, ان کی میرے پورے خاندان کے فرینڈس کی سب کی انشورنس سے وہاں پہ ہے, بٹ بیسٹ ریٹ دیتے ہیں. صحیح ہے. تو آپ کبھی بھی کوئی بھی آپ کو ٹینشن ہے, آپ ضرور ان کو کال کریں انشورنس کے لیے, ٹرائی ضرور کریں, لینا نہ لینا. جیسے میں اکثر مارگیج میں کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے مارگیج کرائیں نہ کرائیں, لیکن آپ ایک مرتبہ کال کر کے پوچھیں آپ کو کانفیڈنس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارے ثنا جوید ریئل اسٹیٹ سے, وہ ہمارے مین اسپانسر بنے ہیں, ان کا بھی تھینک یو سو مچ. پھر ہمارے ساتھ میں ہے ظفر فرام CIBC, sorry BMO, Zafar Ahmed, he's a mortgage specialist. Ahsan Sayed from CIBC, he's a mortgage specialist. Aisha Hanif from real estate. Anis Atiq Faruqi from real estate. اس کے ساتھ ہیں ہمارے غلام نبی, he's also real estate سے ہیں وہ, لیکن وہ کمرشل کرتے ہیں. آپ کے رجوے پہ زیادہ سے زیادہ پراپرٹیز وہی جو ہے نا ڈیل کرتے ہیں, تو آپ ان کو کر سکتے ہیں. ساتھ میں زیب ہیں, ماریا, وہ مارگیج اسپیشلسٹ ہیں, وہ بھی مارگیجز کرتی ہیں. اس کے ساتھ مجتبہ, یہ کہتے ہیں نا آج کل لوگوں کو دل کے بڑے مسئلے ہو رہے ہیں, تو ان کا کلینک ہے. تو اگر آپ کو کسی طرح کی ہیلپ چاہیے آپ ضرور ان سے ملیں, وہ آپ کی بتا سکتے ہیں کہ کیسے صحیح ہونا آپ کو. تو اس کے ساتھ ہمارے سجاد حسین, مائی ینگر بردر, وہ بھی ریئل اسٹیٹ سے ہیں. تو کوئی بھی آپ نے ٹرانزیکشن کرانی ہے کسی بھی طرح کی, تو آپ ان کو رابطہ کریں, ضرور کریں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بزنس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ آتے ہیں, ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں میں خود مارگیجز کرتا ہوں, لیکن مجھ سے زیادہ مارگیج اسپیشلسٹ اور مارگیج ایجنٹ میرے اسپانسرز ہیں. تو اکثر لوگ یہ مجھے کہتے ہیں کہ یار
ये मुझे अक्सर लोग Same कॉल करके business कहते है, हैं कि यार आपको उनको आपका सेम बिजनेस आप अपने आप को प्रमोट करो, आप उनको क्यों एक करते दूसरे हो? को प्रमोट करेंगे, ये अगर हमारी strength आपके है। ज़हन में ये है ना कि रिजर्व अल्लाह ने देनी है, तो सही। आपको कभी जिंदगी आपके 50 भी आ जाएंगे ना, तो वो सही। जो आपकी नसीब में वो मिलना वही है, right। तो उनको हम प्रमोट करते हैं और हमेशा आगे रखते हैं, गुड, और माशाल्लाह उनको बिजनेस भी आ रहा है। इंशाल्लाह। चलो मैं चाहूँगा आखिर में दोनों पैगाम दे दें कुछ हमारे। KK Travel also KK Travel, yes. और उसके बाद अब्बास बेग लॉ, वेरी बिग law firm, amazing gentleman, always supports all our shows, so Abbas Beg is also very good. एक और चीज़ भट्टी साहब, एक चीज़ मैं भूल गया आपको बताने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि ये शो हो रहा है जून 22 को, राइट? जुनून रीलोडेड इज परफॉर्मिंग, जुनून का पूरा बैंड आ रहा है। उसके अलावा वी हैव समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कमिंग अप सही, एज अ शो ओपनर। ओके, अच्छा, वी हैव अ शो ओपनर दैट डे, अच्छा, शिराज अहमद, आई मीन शाहजान अहमद, शिरजान, जो ओके, कि सलमान भाई के बेटे हैं। बेटे, हाँ बिल्कुल, ही हाँ इज एन अमेजिंग आर्टिस्ट। हाँ, अच्छे हैं बिल्कुल, उनके जैसे उससे आपने- थोड़ा सा देखा था, हाँ जी जी जी, जैसे खान साहब के बेटे साथ आए जी, हाँ थे। जी बिल्कुल, सो शाहजान अहमद विल बी द शो ओपनर ऑन दैट डे। यू मस्ट वॉच हिम, इज अमेजिंग। वेरी राइट। कुछ पैगाम शिराज साहब आपको देना चाहेंगे? एक और चीज़, हमने उस दिन ये हमें लोग पूछ रहे थे कि यार उस दिन कुछ नई चीज़ की जाए, कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया जाए, तो हमने क्या किया, हमने पाकिस्तानी फ्लैग बनाए हैं। अच्छा, गुड, ठीक है, इस वी हैव ऑलमोस्ट 1500 to 2000 फ्लैग्स, तो जितने लोग आएंगे हम सबको देंगे। फ्री में फ्लैग Very देंगे कि पाकिस्तानी दिन मनाया जाएगा उस दिन। तो बेसिकली वो जो बता रहे थे कि एक जुनून का शो है, प्लस ये हमारी जो हमने विन किया ये उसकी सेलिब्रेशन है, वेरी गुड, तो वो फ्लैग होंगे सबके पास और वो सब एंजॉय करेंगे। जस्ट इमेजिन 3-4 साल बंदा, everyone holding a Pakistani flag. Yeah. Can you imagine the scene that day? कि सीन क्या होगा इंशाल्लाह? Very right. बड़े फ्लैग, छोटे फ्लैग, सब ने पाकिस्तान का फ्लैग पकड़ा हुआ है, Yeah. पाकिस्तान झंडा पकड़ा हुआ है, 3-3.5-4 साल बंदा बैठा हुआ है। बट सब आप इमेजिन कर सकते हैं कि माहौल क्या होगा पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, So this is the माहौल इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ये we're gonna producing। try to create with आप सबकी हेल्प के साथ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका मोशेक साहब, थैंक यू वेरी मच, शिराज साहब बहुत शुक्रिया, एंड विश यू वेरी गुड लक। Thank you so much. अच्छा जनाब, आप याद रख लीजिए, डेट आपको बता रहे हैं हम, 22 जून है, 22 जून, और ये थिएटर एट ग्रेट कैनेडियन टोबैको में ये थिएटर है, बहुत खूबसूरत थिएटर है जहाँ पे ये प्रोग्राम होने जा रहा है। अच्छा, अभी हमने बात की, मैंने कहा कि आप क्यों शो करते हैं, ये प्रॉफिटेबल नहीं है। देखें, हमारी सबकी, और ये तो उस ड्यूटी को ज़्यादा बेहतर तौर पे कर रहे हैं, हम सब की एज एन पाकिस्तानी ये फ़र्ज़ है कि अपने कल्चर को प्रमोट करें। खुदा ने हमें दिए हैं, इनके बिजनेसेस अच्छे हैं, अगर ये उसके ऊपर कुछ पैसे इनके जा भी रहे हैं तो पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार एक्चुअली ये कर रहे हैं, उस मोहब्बत, और हम सबको अपनी मोहब्बत का इजहार इस हवाले से करना है, सब परचम को वहाँ पे लहराना है, अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार करना है, और दियारे गैर में बैठ के अगर हम अपनी शनाख्त इस तरह से बरकरार रखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो अपनी शनाख्त को अपने बेहतर करैक्टर के ज़रिए लोगों के सामने जो है वो लेकर आ सकते हैं। हम सबका ये फ़र्ज़ है कि अपने मुल्क के लिए अच्छी तरह से रिप्रेजेंटेशन करें, और इसका एक मौका ये कि आप सब इकट्ठे हों और जुनून के शो में आएँ, आप फ्लैग लहराएँ, और इस हवाले से जो ये एक ज़िम्मेदारी, मैं तो समझता हूँ कि हमारी ज़िम्मेदारी भी है कि मुल्क के लिए हमारी जो मोहब्बत है उसका इजहार भी हो। तो ज़रूर याद रखिएगा, आप फ्लैग्स जो हैं वहाँ सबको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। आपको नंबर्स यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको एड्रेस भी नज़र आ रहा होगा। तो 22 जून का दिन याद रखिएगा, जुनून इन जून। तो चलिए जनाब, दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल हौसला भी को हारने की चीज़, एंड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़ बशर्त ज़िंदगी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। स्टूडियो इंजीनियर तला भट्टी और अपने मेज़बान अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ और सपुर्द मौला।